Hello and welcome back to my video. Let me first of all introduce myself. I am just like one of you who was writing her FMG exam 3-4 years back, and now I am here in front of you thinking that I could guide you in your journey. So I am also a FMG student who did her UG from outside India and then gave her FMG exam and cleared that in first attempt. And after that I gave my NEET PG and that too I cleared in my first attempt, all by God's grace. So, talking brief about my FMG journey. Back in June 2020, I was writing my final year MBBS exams and I was supposed to give FMG exam that was in December of that year. But at that time, COVID happened, lockdown happened, and the June exam got postponed. That FMG exam in June got postponed, and then it happened in August. So at that time I did not consider that as an opportunity, and then I was thinking how will I be able to clear that exam in just barely 2 months. I was supposed to give it after 6 months, but then things will fall into place, and here I am. So in August 2020, I gave my exam, and in first attempt, with 2 months of preparation, I got marks of 203 out of 300. And then I went on to do my internship in a government hospital in India. And then after my internship, I gave my first NEET PG exam, and there I got a rank of 1900. And currently, I am a third year medicine resident at a government medical college. So I think I'm a little bit capable of guiding you all through your FMG journey. More than telling you what to do, I will be telling you what not to do, what not to repeat, the mistakes that I have made during my preparation. So let's just dive into the video. So first of all, we'll understand what is FMG is all about. See, एग्जाम को समझते हैं पहले. एग्जाम हमसे क्या उम्मीद करता है, what does exam wants from us. See, I'll make a comparison of NEET PG and FMG. FMG is not a degree exam. ये आपको कोई भी डिग्री नहीं देता है. FMG is a licensing exam for the foreign medical graduates because we need a license to work in India, and this is just a licensing exam and ये हमें कोई भी डिग्री नहीं देता है. Secondly, there is no competition at all. I'll make you understand what. See, NEET PG में there are set number of seats in whole India for which everyone competes to get a seat in their dream branch and dream college. So you have to compete with someone. आपसे आपका competition होता है और लोगों के साथ, क्योंकि अगर आपने और अच्छा परफॉर्म नहीं किया then chances हैं कि आपके हाथ से सीट निकल जाएगी. But is there any such competition in FMG? No, there is not, because out of 300 you just have to get pass. There is nothing as rank 1, rank 2, rank 100. कोई rank नहीं होती है FMG एग्जाम में. It's either fail or pass. The person who is scoring full marks and the person who is scoring barely 150, they both are pass. तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है, आपको अपना बेंचमार्क 150 से ऊपर लेके जाना है, and that's all should be your motive. Your motive is not to compete or think about what other is doing. वो ज़्यादा पढ़ रहा है वो सीट ले जाएगा, कोई सीट है ही नहीं. आपको बस उस बेंचमार्क के उस साइड जाना है टू हैव अ डिफरेंट जर्नी इन इंडिया. ठीक है, तो आपका कंपटीशन इसमें आप खुद हो. इफ यू विल डू बेटर फ्रॉम यस्टरडे विद इन योर सेल्फ, तो यू विल जस्ट थिंक कि यू आर गेटिंग क्लोजर टू दैट 150 मार्क्स एंड देन वन डे यू विल क्रॉस दैट. तो इसमें आपका कंपटीशन नहीं है इस टेस्ट के अंदर. सेकेंडली, वेरी गुड थिंग इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन नीट पीजी. फॉर एवरी correct question you get 4 marks, and for every wrong question you get -1. So see, most of the exams are based like out of 4 options there will be dicey decision. We will all be in dilemma in between the 2 options and we take the risk. But if there is a question in which we are having dilemma in 4 options और हमने अभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो in NEET PG we try to avoid to attempt that question. Why? क्योंकि देखो NEET PG के ना टॉपर्स के मार्क्स में फर्क होता है, 15-20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का. बट एज द रैंक फॉल on 1 mark there is almost 2000 students standing on 1 mark. So अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया एंड आपकी एक रैंक नीचे चली गई, एक मार्क कम हो गया आपका, तो योर रैंक फॉल्स बाय 2000, एंड 2000 का रैंक फॉल इज अ वेरी बिग फॉल. सो दैट इज द थिंग इन नीट पीजी. बट FMG में देर इज नथिंग एज नेगेटिव मार्किंग. अगर आपने क्वेश्चन सही है तो यू विल गेट मार्क्स, अगर गलत है यू विल नॉट लूज एनीथिंग. आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू विल नॉट गेट अ -1. So your attempt rate in FMG exam should be 300 by 300. Not even a single question should get unattempted.
because the moment you are losing questions, it means you are losing the chance of getting 150 marks. The more you will attempt, the chances are high कि the more you will get right if you study. ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ना तो भूल जाओ कि you will leave any question in FMG exam. Got my point? Second, FMG exams happens biannually, twice in a year, although NEET PG happens annually. So it gives you a chance to attempt that twice. मैं ये नहीं कह रही कि 2 बार अटेम्प्ट देना ही देना है, बट डोंट बी अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे. अपने आप को ना पुश करना है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ. ठीक है. एंड देन 300 questions are there that are being taken in the group of 2.5 and 2.5 hours in 2 slots. So 150 questions in 2.5 hours is quite a lot of time, because it's not like 1 minute one question. You have quite a good amount of time while solving these questions. तो समझ लिया एग्जाम किस बारे में. एक अपने ना दिमाग में माइंडसेट बना के चलो कि हमारा एग्जाम हमसे क्या उम्मीद कर रहा है. आपका एग्जाम आपको एक्सेल करने की उम्मीद नहीं रखता कि आप एक्सेल करो. आपका एग्जाम आपसे इतना चाहता है कि आपको इतना आता हो कि आप एक बेसिक पेशेंट ट्रीट कर पाए, देख पाए एज अ फिजिशियन, एंड जिसके लिए आपका बेंचमार्क 150 मार्क्स है. नॉट लाइक कि आपको कहीं का डीएम का स्टार बनना है, नथिंग. आपको इतना आना चाहिए. दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट्स. तो I have divided subjects as high yielding, scoring and finds difficult. See, high yielding और scoring में फर्क क्या है? High yielding का मतलब है that number of questions from per subject are more. Although total मिला के medicine, PSM, obs, and surgery, these 4 subjects will constitute almost 120 to 130 questions. That means 30 questions each subject. Quite a lot of number. But what do I mean by scoring? See, for example, medicine में if you get 30 questions, chances are कि you will get 18 right, 20 राइट, मैक्स 25 राइट, बट सारे क्वेश्चन सही होने के प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. बट ऑल्दो ऑन द अदर हैंड इन डर्मा इफ यू आर गेटिंग 3-4 क्वेश्चंस, तो चांसेस आर कि आपके चारों में से चारों क्वेश्चन ठीक होंगे. ऑर्थो में से 2 क्वेश्चन ठीक होंगे. रेडियो में से 5 क्वेश्चन ठीक होंगे. तो स्कोरिंग क्या हुई? ये हुए. बेशक कम क्वेश्चन पूछेंगे, बट जो पूछेंगे बिकॉज सिलेबस लिमिटेड है, सेट पेट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो पढ़ के जाने हैं, PYT पढ़ के जाना है. आई कम टू दैट. एंड so they are scoring. Although the questions from ENT, Biochem, Pharma, Physio are around 10 to 12 each subject, but they are also not so hard. अब कई लोग आप में से बोलेंगे कि मैम बायोकेम तो बहुत मुश्किल है, आप ऐसा कैसा बोल रहे हो. See, find difficult can be different for everyone, because for me find difficult because during my MBBS days I have studied biochem in a very good way, so I did not find much of difficulty while preparing for FMG. But although on the other hand, anatomy, microbio, pediatrics and opthal, I was really very weak in all of these subjects. तो हमारा मोटिव हमें पता होना चाहिए कि हमारे हाई यील्डिंग स्कोरिंग कौन से और फाइन डिफिकल्ट कौन से हैं. हमें क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जब हमें हमारा वीक पॉइंट पता होगा, हमें पता है कि हमें किस पे काम करना है. सपोज अब मुझे बायोकेम आता है, तो आई विल नॉट वेस्ट इन बैंगिंग माई हेड ऑन दैट बायोकेम. मुझे पता है अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 मेरे ठीक हो जाएंगे, इतना मेरे को आता है. तो आई विल जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड पॉलिशिंग ऑन माई डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, बिकॉज अगर ये मेरे को नहीं आते एंड इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत करने के चांसेस हैं मेरे. तो आई विल वर्क ऑन माई वीकर सब्जेक्ट्स मोर दैन माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. तो आपको अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए टू हैव अ गोल, एंड यू शुड नो हाउ टू वर्क अपॉन इट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देखो, जो सब्जेक्ट मुश्किल है ना, जो आपको लग रहा है कि आपको बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ने में, एक चीज समझ लो उसकी. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. लाइक आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS आई हैड नो कॉन्टैक्ट विद एनाटमी. एनाटमी वॉज सच अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट फॉर मी. मुझे कुछ नहीं आता, क्या मसल, नर्व, ब्लड सप्लाई, एक्शन, इंसर्शन, ऑरिजिन, आई रिमेंबर नथिंग. सो फ्रॉम समवेयर एटलीस्ट आई हैड टू पुट एफर्ट्स. कुछ ना कुछ तो करना पड़ना है, ऐसे लेट गो तो नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट को. तो द कोचिंग आई हैड ज्वाइंड, I had believed that coaching blindly for these 4 subjects. I knew कि अगर मैं खुद से पढ़ने बैठूंगी ना, तो मेरे पास कोई मटेरियल है कि जो मैं 2 महीने में पढ़ के रिवाइज भी कर सकूँ विद अदर सब्जेक्ट्स, एंड ना ही आई विल बी एबल टू ट्रस्ट दोज रिसोर्सेज जिससे मैं खुद से पढ़ रही होंगी. बुक पढ़ने का टाइम है नहीं, रिसोर्स मैं कोई ट्रस्ट कर नहीं सकती. सो वॉट एवर प्लेटफॉर्म आई वॉज फॉलोइंग, आई जस्ट डिड दिस टू माई सेल्फ कि अब जो है और अब यही है, जो पढ़ना है इससे पढ़ना है. तो आई वॉज थिंकिंग, तो आई हैड अ प्लान कि मेरे को जो पढ़ना है अब इससे पढ़ना है. अगर जो मेरा वीक सब्जेक्ट है
तो उसमें आई कांट डू मच अभी इन दोज 2 months और 6 months। बट जितना मेरे सर ने टीचर मेरे को पढ़ाया है, अगर मैं उतना भी ढंग से पढ़ लेती हूँ और याद कर लेती हूँ, दैट विल बी मोर देन इनफ। बिकॉज यार वो टीचर्स लोग काफी टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा हाई यील्डिंग है। तो बेशक कि मैं अपना दिमाग लगाऊं राइट लेफ्ट, तो आई शुड फॉलो प्लेटफॉर्म ब्लाइंडली। एक कोई चूज कर लो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। एंड कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कैन वी लीव अ सब्जेक्ट इन एफएमजी एग्जाम। सी इफ आई से ट्रूथ कि सी नीट पीजी में तो यू कांट अफोर्ड, बट एफएमजी में यू कैन अफोर्ड 1 or 2 सब्जेक्ट छोड़ने का। बट ऐसा भी नहीं कि आप पूरा ही छोड़ दो। लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मेडिसिन वाज क्वाइट वास्ट टू मी। सो आउट ऑफ लाइक मेडिसिन हैज 10-12 systems, so out of that those 10-12 systems I have studied 7-8 systems and then I left 4 systems. I was like अब नहीं हो रहा मुझसे तो देखा जाएगा, बट जो पढ़ना ढंग से पढ़ना है। तो ऑल्दो इसके अलावा आई डिड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई एफएमजी, एंड मेडिसिन भी मैंने थोड़ा सा पढ़ के गई थी, एंड देन थोड़े बहुत सिस्टम्स आई लेफ्ट। तो अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, उस पर मेहनत करी है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि सी दैट सब्जेक्ट शुड नॉट बी अमंग द हाई यील्डिंग वंस, एंड स्कोरिंग में से भी ना हो, डिफिकल्ट में से हो सकता है बट स्कोरिंग में से भी ना हो, बट अगर है, आपने मेहनत करी है, बट स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर जस्ट हेल्पलेस, यू हैव studied also, doing questions also, but नहीं समझ में आ रहा, then you can afford to skip 1 or 2 questions, because देखो FMG का पैटर्न सेट नहीं है। at times there can be questions from one subject, at times there can be most questions from one subject. There's not a particular pattern that FMG is following for a very long time. तो that might cost you few marks, but अगर आपने मेहनत करी है तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट छूटना चाहिए। कम पढ़ के जाओ, बेशक रैपिड रिवीजन से पढ़ो, मेन वीडियोस ना पढ़ो, बट छोड़ने का ट्राई करना कि ना करना पड़े आप लोगों को। ओके, सो नाउ कम टू द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर, विच रिसोर्स टू फॉलो। सो एज आई सेड, देयर आर n नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रिसोर्स बेस्ट सूट करता है। देखो द पर्सन आई वॉज, I could not study by myself, so I needed something who can push me, motivate me, have a schedule, because I was a person who used to study and then take break, study and then take break. But इस 6 महीने में ना आपको थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कुछ अच्छी आदतें आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी, जैसे कि थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट होना, थोड़ा कम टाइम वेस्ट करना, थोड़ा स्क्रॉलिंग कम करना, रील्स कम देखना। क्योंकि देखो वर्क लाइफ बैलेंस ना आप MBBS डेज में कर चुके हो, वर्क लाइफ बैलेंस, मस्ती पढ़ाई बैलेंस, बट ये 6 महीने आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखना है, आपको सिर्फ वर्क करना है, जिससे कि इसके बाद की जर्नी आपके लिए अच्छी हो, एंड यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन योर मेडिकल जर्नी। अगर 6 महीने मेहनत कर ली ना, फोन साइड रखकर, रीले छोड़कर, टाइम वेस्ट छोड़ के, देखो नो पेन नो गेन। अगर कुछ पाना है तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सैक्रिफाइस जैसे दोस्तों से कम मिलना, फोन कम यूज करना, थोड़ा टाइम वेस्ट कम करना, मैरिजेस में, वेडिंग्स में, फंक्शंस में कम जाना, बिकॉज दैट ऑल इट कॉस्ट टू हैव अ रैंक ऑफ मार्क्स ऑफ मोर देन 150। अगर आपने 6 महीना अपने पे लगा लिया, अपने पे डाल लिए, तो नो वन कैन स्टील और टेक दैट 150 मार्क्स अवे फ्रॉम यू। एंड अगर आपने इतनी मेहनत दिखा दी ना, ट्रस्ट मी 220 से नीचे मार्क्स आपके आ ही नहीं सकते, यू विल बी अबव दैट ओनली। बट वो कब होगा? when you will be truth to yourself, to your honesty, to your hard work. तो you should, या तो अगर आप पढ़ सकते हो अपने आप में बिना ब्रेक लिए, whatever resource you have, online resource, then it's okay. But if you're someone like me who cannot study and sit and study regularly without taking frequent breaks, then you should have someone who can guide you in your study schedule, and then जहाँ पर क्लासेस हो आप वहाँ जाएं, आप वहाँ पढ़ें, जब क्लास ब्रेक दे तो आप ब्रेक लें। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म शुड हेल्प यू। नाउ सेकेंडली, what all things you should choose or think before choosing a resource. See, there should be always a two-way communication. What happens whenever we study, there is so much of knowledge in all the notes, but समझने में ना एक तरीका होता है, कभी कभी कुछ वर्ड्स आर ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड जो हमें नहीं समझ में, हम डाउट्स कहते हैं। एंड अगर वो डाउट्स कभी फिल नहीं हुए, कभी वो वर्ड्स फिलअप नहीं हो पाए, देन यू विल नेवर गेट अ सेंस ऑफ एनी कंप्लीशन आउट ऑफ दैट सब्जेक्ट और सिस्टम। तो डाउट्स क्लियरिंग सेशंस जो आपका प्लेटफॉर्म है वहां पर होने चाहिए। अगर नहीं है, बट यू हैव सम टीचर्स कॉन्टैक्ट, सो यू शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट दैट टीचर, एंड दैट टीचर शुड बी एबल टू क्लियर अ डाउट। डाउट्स क्लियर हमेशा होने चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड थिंक ऑफ स्विचिंग ऑफ टू सम अदर प्लेटफॉर्म जहां पर देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, बी इट ऑनलाइन, बी इट ऑफलाइन, बट देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन टू फिल दैट वॉइड।
सेकंड, आपके रिसोर्स में प्रॉपर टेस्ट का टाइम होना चाहिए कि आज हमारा ये टेस्ट है, एक दिन हमारा ये जीटी है, एक दिन हमारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए क्लासेस का दैट दे आर एमिंग टू कंप्लीट द सब्जेक्ट बाय दिस टाइम सो दैट यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज. एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली सी, एक सब्जेक्ट के 10 रिसोर्स हैं मार्केट में, बट ये आपको सोचना है कि कौन सा रिसोर्स चूज करना है. सी, हर रिसोर्स में ना, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, कुछ बहुत ही नए जो बहुत ही बेकार हैं, कुछ बहुत ही अच्छी हैं, या मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में टीचर्स आर ओके जो ओके पढ़ाते हैं. बट हर एक सेंटर का अपना प्रोज एंड कॉन्स है. अभी आपको देखना है विच कॉन यू कैन हैंडल बाय योर सेल्फ. जो कॉन आप ये ठीक है, जैसे कि द कोचिंग आई टुक ड्यूरिंग माई FMG, एनाटमी वॉज ओके, नॉट वेरी गुड बट इज ओके. बट मुझे पता था कि मेरी इतनी औकात है, मैं इससे ऊपर एनाटमी पढ़ ही नहीं सकती. कोई मुझे पढ़ाएगा तो मैं भूल जाऊंगी. तो मुझे पता था कि जो मेरी औकात है उसके अकॉर्डिंग दिस इज द मैक्स आई कैन रिमेंबर. सो ठीक है, जैसा भी he was really nice though he taught me, I could remember it really well for my exam. So देखो, अब आपको हर जगह तो बेस्ट नहीं मिलेगा, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर, बट ये आपको देखना है कि विच इंस्टीट्यूट सूट्स यू द बेस्ट. एंड इफ यू आर समवन हु इज हैविंग अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डू नॉट वरी एट ऑल. आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, कोई कलीग्स होंगे, कुछ आपके यूजी में साथ में थे, किसी ना किसी ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, आप उनके पास जाइए, उनके पास कोई नोट्स होंगे, उसमें टॉपिक जो है, टॉपिक की फोटोकॉपी इंडेक्स लिख के लेकर आ जाइए. यूट्यूब पे बेअंत ज्ञान पड़ा हुआ है हर चीज का, एंड इतना ज्ञान है, अगर आप वो वीडियोस देख लें इंस्टेड ऑफ कोचिंग वीडियोस, आप स्टिल पास हो जाएंगे. बिकॉज यूट्यूब में ट्राई टू यूटिलाइज यूट्यूब फॉर योर बेटरमेंट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम. ठीक है, तो अगर यूट्यूब यूज करेंगे तो कुछ पढ़ने के लिए, तो कुछ सीखने के लिए, सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए यूज नहीं करेंगे हम यूट्यूब. ठीक है, तो जस्ट चूज योर रिसोर्स वाइजली एंड फॉर वन सब्जेक्ट चूज वन सोर्स. दैट इज पॉसिबल कि आप एनाटॉमी कहीं से पढ़ रहे हो, फिजियो कहीं से पढ़ रहे हो, पैथो कहीं से पढ़ रहे हो, बट अगर आपने पैथो के ही 4 रिसोर्स ले रखे हैं, हाउ विल यू कम टू नो विच टू फॉलो. देखो, आउट ऑफ 300, more than 95% of the content is same in each and every platform. हर एक प्लेटफॉर्म पे 95% कंटेंट सेम होता है. ओनली 5% इज समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. बट डू नॉट रन बिहाइंड दैट 5% की नहीं, वहां तो ये अलग पढ़ाया था, ये अच्छा पढ़ाया था. भाई 95% तो सेम है ना, हम वो कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे. तो हमें 5% के पीछे नहीं भागना है, हमें 95% के पीछे भागना है, जो हमारा वो मैक्सिमम एरिया क्लियर कर दे, कवर कर दे एंड पढ़ा दे हमें. ठीक है, now this is a study pattern that I have made for the students who are giving FMG after 6 months. See, those who are giving in June, do not follow this. Whatever you are studying and following your exam preparation, stick to that. Revise your notes, revise PYQs, PYTs, practice questions, and then go. Do not look at this. This is I have made for someone who is aiming for FMG after 6 months and have quite a good amount of time. See, studying, I'll tell you one more thing. If I will study 100 topics once, will it be better? Or if I study 60 topics 3 times, will it be better? Of course, the one I will study 60 topics 3 times. Because 100 topic once मैं पढ़ भी लूंगी, I will be nil beta nil. मुझे कुछ नहीं याद होने वाला एक बार में. तो you have to generate memory inside your mind by reading the same thing again and again and again, known as revision. जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला. रिविजन इज द की टू क्रैक एनी एग्जाम, बीट मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA, आप कोई भी ले लो. विदाउट रिविजन, UPSC विदाउट रिविजन नथिंग कैन हैपन. आप किसी भी टॉपर की वीडियो खोल लो, उसका एक ही मूल मंत्र है, रिविजन, रिविजन और रिविजन. अगर 100 चीजें नहीं पढ़ी है, पढ़ी हमने 60 है, मुझे 60 पता होनी चाहिए कि मैंने 60 पढ़ी है. इन 60 में से मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझे आता होगा. ठीक है, सो दैट शुड बी योर अप्रोच. योर अप्रोच, देखो हम यहाँ पर कोई अपना सुपर स्पेशलिटी करने आए नहीं FMG को क्रैक करके. FMG में हमें बेयर मिला के पास होना है बस, सो दैट वी कैन डू आवर इंटर्नशिप एंड कैन गेट अ लाइसेंस टू वर्क इन इंडिया. तो हमें हर सब्जेक्ट की डेप्थ में नहीं घुसना कि हमें उसके DM लेवल की तैयारी करनी है. हमें बस हर सब्जेक्ट इतना पढ़ना है कि हम पास हो सके. I like those students who are so lazy, I would say, because they know कि इससे ज्यादा they cannot study and इतना पढ़ के उनका काम हो जाएगा. तो क्यों पढ़ना है? बाकी जब पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, अब तक एग्जाम पास करते हैं. बाकी जब we will prepare for NEET PG, we will during our internship हम तैयारी करेंगे अच्छी तरह बैठ के. बट अभी हमारा एम क्या है? पास होना. तो अभी हम इतना डेप्थ में हर किसी सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम कहीं पे खो चुके हैं. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दिस स्केड्यूल, I have divided these 6 months into 4 or 5 batches.
The first batch is of 2.5 months, जिसमें we will start from scratch, we will start learning our basics from scratch. इसमें हम भागेंगे नहीं. इसमें our motive is to study, to learn something new that can help a human, that can help a human. So इसमें मैं ऐसा नहीं करना कि हमें फटाफट मेडिसिन खत्म करनी है, ऑप्थ खत्म करनी है, पीड्स खत्म करनी है, सो दैट वी कैन डू क्वेश्चंस. नहीं, इसमें हम अपना टाइम देंगे एंड उसको पढ़ेंगे एंड समझेंगे. एंड उसके बाद सपोज आज मैंने टॉपिक पढ़ा हाइपरटेंशन, तो द मोमेंट आई हैव स्टडीड हाइपरटेंशन, उसके जस्ट बाद ही मैं अपने रिसोर्स से क्वेश्चन जो हाइपरटेंशन की है वो करूंगी. आई विल नॉट वेट, आई विल नॉट से कि अभी तो मैंने पढ़ा है, मुझे याद ही होगा तो अभी क्यों करूं. नहीं, अभी हमारा मोटिव अपने आप को चेक करना नहीं है. अभी हमारा मोटिव है एक जगह सारी नॉलेज ग्रास्प करना, सो दैट व्हेन वी विल सिट टू रिवाइज वी विल हैव एवरीथिंग इन वन प्लेस. तो अभी आपने क्वेश्चन किया जो हाइपरटेंशन का, ओपन द मॉड्यूल ऑफ क्वेश्चन ऑफ हाइपरटेंशन एंड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन. जो जो पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं है उसको वहां ऐड करते जाओ. कुछ होंगे आपके नोट्स में होंगे, जस्ट पढ़ते जाओ. जो पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं है, जस्ट कीप ऑन एडिंग फ्रॉम दोस क्वेश्चंस. तो आपका ये पूरा हो गया फर्स्ट रीडिंग. आई स्टडी टू लर्न समथिंग न्यू, डू नॉट रश, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डू टॉपिक वाइज टेस्ट एंड एड पॉइंट्स इन योर नोट्स. And the very, 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 very important part of the day is revise at the end of the day. I cannot tell you how much important is this one thing, revise at the end of the day. The two things which has helped me cracking my FMG was revision at the end of the day and GTs. See, I used to do coaching on an online class, and the whole day class used to go with breaks in between, and the class used to get over by 9 or 10 p.m. and by that time everyone is so tired. So what I used to do, I used to have some light dinner, freshen up myself, at times take shower, and then make a good coffee or tea, or at times cold coffee for myself, and then sit with that to enjoy my time. Revision should be your time. You should consider revision as a time of enjoyment instead of some burden or work. देखो, आपने सारा दिन बैठ के पढ़ाई करी है, नोट्स बनाए हैं, मजदूरी करी है, समझा है, दिमाग लगाया है. रिविजन में ना तो आपको नोट्स बनाने हैं, ना आपको मजदूरी करनी है, ना कुछ नया सुनना है. You just have to go through whatever notes you have made. सपोज आपने पूरे दिन में बैठ के 15 पन्ने लिखे, क्लासेस में आपने 15 पन्ने लिखे. तो वो क्या करना है, you will just take a short break and then freshen up yourself and then sit with a cold coffee or tea, whatever you like, and then you will take that 15 pages. You will not read word to word. हमें उस 15 पेजों को 10 मिनट में पढ़ना है. कैसे पढ़ेंगे? This is the time you will improve your skill of reading. सी, अगर हाइपरटेंशन में पढ़ने बैठूंगी, डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन इज दिस, नो. मुझे पता है, टीचर ने मेरे को बताया है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. हाउ विल आई स्टडी हाइपरटेंशन? अच्छा, कॉजेज ओके, क्लिनिकल फीचर्स ओके, कॉम्प्लिकेशंस वर दिस, ड्रग वाज दिस, डोसेज वर दिस, रेजिमेंट्स वर दिस वाज अ कॉम्प्लिकेशन. ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा. अच्छा, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था. ऐसे फास्ट फ्लाइंग रीडिंग मारनी है एट द एंड ऑफ द डे. यू विल नॉट रीड वन वर्ड बाय वन वर्ड. ऐसे तो आपको फिर आधा घंटा लग जाएगा अपना टू डू जस्ट 15 पेजेस. तो यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी ड्यूरिंग दिस रिविजन पीरियड. एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपको रिविजन की लत लग गई ना, इससे अच्छी लत कोई नहीं है. बिकॉज you cannot go back to sleep without revision. आपको लगेगा यार रिवाइज नहीं किया, ऐसे कैसे सो गया मैं. बिकॉज द मोमेंट यू विल रिवाइज, द नेक्स्ट डे आप उठ के आओगे ना, आपको पता है कि मैंने एक दिन पहले क्या पढ़ा है, एंड यू आर जस्ट नॉट लॉस्ट. आप लॉस्ट नहीं हो कि यार कल क्या पढ़ाया था, कुछ याद ही नहीं आ रहा. बिकॉज यू गेव दैट 10 minutes to yourself, and that 10 minutes will be proven so fruitful to yourself कि you will think कि I thank myself for giving those 10 minutes, because the next day you will study, you know कि आपका एक बेस बन चुका है, आपको उसके ऊपर पढ़ना है. ठीक है, तो रिविजन से भागना नहीं है. If you are someone who is really afraid of revising, then I think you should really work upon yourself, because without revision you will not be able to clear this exam, first of all. Now coming to second reading or first revision, that will be in 1.5 months. I have reduced the time because in first reading you are making notes also, and at this time you will not make notes. Whatever notes you have, you will just keep on reading them. Start from starting a little faster reading because you have already read it once, and then
मार्क फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सी होता क्या है नोट्स में ना आपके दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं, तो दो तरह के नोट्स होते हैं। इन द टॉपिक देर इज 50% फैक्ट्स एंड 50% कंसेप्ट। हम अपनी फर्स्ट दो रीडिंग में कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट उसके बाद वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट ना एक दो बार में यू कैन जस्ट रिमेंबर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर आर द फैक्ट्स, doses, dates, salaries. This is something that you suffer to remember. So हम focus इस पे करेंगे, not by just reading fact concepts again and again. तो जब इस बार when you are doing second reading आप एक पेन लेंगे and whatever are facts or important points you will just keep on highlighting them or make a star mark or a circle, because जब आप आगे पढ़ेंगे you know कि मुझे यही पढ़ना है, I don't have to go through the whole concept again. ठीक है। एंड उसके बाद सपोज आपने हाइपरटेंशन पढ़ा, हाइपरटेंशन वाज ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 पेजेस, आपने पढ़ लिया। यू हैव टू कंसाइज दोज नोट्स नाउ। इफ यू आर समवन हु आर रियली अफ्रेड बाय सीइंग थिक नंबर ऑफ पेजेस, इतना सारा पढ़ना है, देन द बेस्ट ट्रिक इज आपने हाइपरटेंशन पढ़ा, आपने सपोज XYZ टॉपिक पढ़ा एंड देन आपने कॉपी बंद कर दी। आपने फर्स्ट रीडिंग में लिया हाइपरटेंशन को 3 दिन, सेकेंड रीडिंग में आपने लिया 4 घंटे, बट उस 4 घंटे के बाद यू विल क्लोज योर कॉपी and you will take a page and then think what all was important and we'll start writing that this was important, what all you can recall, known as active recall. Active recall helps you to remember or recall answers during your exam, because exams mein you don't have any notes or copies or points, so you have to practice active recall by closing the notebook and by thinking acha ye tha ye tha ye tha, and you will start writing. The moment you are done with writing, just open the notes and think what all important you have missed, and then you will write those also. So out of that 8 pages you have concised everything in that 2 page. तो डे आपने शुरू में देखो, आपने शुरू में पहले 12 पेज का हाइपरटेंशन पढ़ा, नाउ आउट ऑफ द 12 पेजेस यू हैव हाइपरटेंशन इन जस्ट 2 पेजेस। सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपने डायग्राम फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में अपने पास बना लिया। तो देखो आपका इतना सारा मटेरियल अब इतने से रह गया, तो दिस इज इतना पढ़ना इज स्टिल ईजियर। कंसेप्ट हमने कुछ गायब नहीं किया, हमने शॉर्टकट नहीं लिया, इट्स जस्ट वी आर ट्राइंग टू डू स्मार्ट वर्क टू हेल्प आवर सेल्स। ठीक है। एंड देन व्हेन यू आर डन विद वन सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर सेकंड रीडिंग, व्हाट यू विल डू आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 2 days, what do you mean by break, that you will start something else, not like आप पढ़ना छोड़ दोगे बिना पढ़े, there should not be a day. तो after taking a gap of 2 days from medicine, you will give a subject wise test after closing the notes. You will not look into this, you will give a test and then you will see how much you have scored. Do not focus upon the rank, focus upon the number of correct questions and then add those points that were not in your notes. तो देखा जाए तो आपके पास सब जगह मेडिसिन की एक जगह इकट्ठी हो चुकी है, सेम फॉर PSM, माइक्रोबायो, सेम फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो आपके पास हर सब्जेक्ट की ना कुछ नोट्स बन चुके होंगे, जिसमें कुछ कंसाइज नोट्स होंगे। जो टॉपिक स्मॉल हैं उसमें तो आपको कंसाइज नोट्स करने की जरूरत है नहीं। जो लोग टॉपिक्स बहुत बड़े हैं, लाइक प्री एक्लेम्सिया हो गया, PPH हो गया, काफी सारे PSM में होते हैं, देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग दीज कंसाइज नोट्स दैट विल हेल्प यू इन द एंड ड्यूरिंग योर फाइनल रिविजन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, revise at the end of the day. Okay, now coming to third reading, that will be little more faster. Try active recall and revise at the end of the day. So आपके ऐसे करते करते 5 months निकल गए, 5 months are done and you are done with 19 subjects thrice. 5 महीने में you are done with 19 subjects thrice, my dear. देखो अब आपके पास बचा लास्ट का 1 month. This 1 month is really crucial for someone who has really given his or her best during 5 months. अब होता क्या है ना, बच्चे यहाँ तक आके बच्चे थोड़ा दे गेट डिस्ट्रैक्टेड कि नहीं मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझसे ये नहीं हुआ। डू नॉट वरी, सी सोच के देखो, आपको FMG एग्जाम गिव्स यू द विंडो ऑफ डूइंग 150 क्वेश्चंस रॉन्ग। जस्ट इमेजिन कि अगर आप 150 क्वेश्चन गलत करते हो, स्टिल यू आर पास। समझ रहे मेरी बात? 150 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, बट दैट मच विंडो इज देयर। तो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। देखो चीजें छूटेंगी, आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आपको फोमो होगा, बट इट्स अप टू यू हाउ यू रिएक्ट टू योर फोमो। अगर यू आर समवन हु इज टाइप A पर्सनैलिटी एंड गेट्स एंग्शियस वेरी ऑफन, यू नीड टू लर्न वन थिंग कि जिंदगी में कुछ ना कुछ छूटेगा ही, हर कुछ तो आपके पास नहीं रुकने वाला, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई। तो लेट्स फोकस अपॉन व्हाट वी कैन डू। वी कैन डू इज इंस्टेड, हमारे पास 2 ऑप्शन है, इधर वी कैन टेक स्ट्रेस एंड जैसे यहाँ भागे, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सेकेंड, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, हैव फेथ इन गॉड एंड जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव।
You have such a good amount of notes and quantity of syllabus that you can revise and still pass. Then why to get FOMO? ठीक है. And in last 1 month में we will start doing PYT. Listen to me carefully, not PYQ, PYT. जो लोग PYQ करते हैं, PYT करना है. What is PYT? Previous year topic. See, suppose पिछले साल में क्वेश्चन आया प्री एक्लेम्सिया से, आपने वो पढ़ लिया, आपने ऑप्शन पढ़ लिए, रट लिया. बट वॉट इफ द एग्जामिनर चेंजेस ऑप्शन दिस टाइम? आप तो फिर चले गए, आप फेल हो गए. हमें PYT पढ़ना है. पिछले साल क्वेश्चन आया एक्लेम्सिया का, आपने नोट्स खोले, आप नोट्स में जाके आपने एक्लेम्सिया पढ़ा. अब इस टॉपिक से कुछ भी आ जाए, यू आर वर्ड्स विद इट कि नहीं तो मुझे आता है, कुछ भी पूछ ले मेरे को आता ही है, तो PYT पढ़ेंगे, PYQ नहीं पूछनी पड़ेंगे. और डोंट स्टडी PYT द होल डे. एट द एंड ऑफ द डे जब आप 7-8 PM तक पढ़ चुके हैं, टेक आउट टाइम फॉर PYT, 2 घंटे 1.5 घंटा उस टाइम पे पढ़ना है. एंड देन उसके बाद यू हैव टू गो फॉर क्वेश्चंस. डू नॉट स्टडी PYT फॉर द होल डे. अपना फोकस रखो रिविजन के ऊपर कि आपके पास 19 सब्जेक्ट्स हैं, यू हैव टू रिवाइज देम ट्वाइस इन 1 month. ठीक है. एक तो आप पढ़ोगे 21 days की विंडो में, यू विल रिवाइज दोज 19 सब्जेक्ट्स, बिकॉज आप 3 बार पढ़ चुके हो. योर रीडिंग विल बी रियली फास्ट. यू नो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है. 3 बार में ना लॉन्ग टर्म मेमोरी बननी स्टार्ट हो जाती है. तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम यू विल स्टडिंग. तो यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड पेस फॉर रीडिंग. एंड देन इन द लास्ट 10 days, जो आपके लास्ट के 10 days हैं, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं भागोगे, कुछ नया नहीं खोलोगे, कुछ नए टॉपिक ओपन नहीं करोगे. जो भी आपने कंसाइड नोट्स बनाए हैं, सबको बस फटाफट अपनी आईज के सामने से निकालना है. जो आप टॉपिक आपने लास्ट 10 days में यू हैव गॉन थ्रू इन फ्रंट ऑफ योर आई, वो आपको एग्जाम में याद आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं है कि आपने देखा हो एंड यू फॉरगेट इन द एग्जाम. तो आपको फटाफट 19 सब्जेक्ट्स को यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम इन 10 days अपनी आंखों से, जिससे कि यू कैन जस्ट reciprocate or recall that in the exam. So अगर आपको मेरा पैटर्न पसंद नहीं आया, you can just go and make your own pattern. But remember one thing, do not put revision at the end of the day, because this is one thing that will help you so much that you will thank yourself कि I am thanking myself कि I did not give up on revision. ठीक है. Now coming to MCQs, SWTs, GTs, they are really important to get you an idea of how the exam looks like. MCQ you will do topic wise in your first reading, and you will just add points from those questions in your notes. Secondly, you will do SWT in your second reading. Second reading के बाद जब आप गैप के बाद टेस्ट दोगे, you will add points in your notes. Do not judge yourself out of these MCQs and out of these SWTs. Coming to the mastermind of FMG or NEET, that is GT. Hands on my heart, the amount of revision and GTs have helped me during my FMG and NEET PG journey. I cannot think any other thing helped me, because पढ़ाई सबके पास है, कंटेंट सबके पास है, इच्छा सबके पास है, सामान सबके पास है. कमी है तो हिम्मत दिखाने की, GT देने की. Many of you approach me कि मैम हम बहुत डरते हैं GT से, अगर हमारे मार्क्स कम आए तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी एग्जाम देने की. आप क्यों डीमोटिवेट हो गए, एक बात बताओ मुझे. इज GT और फाइनल एग्जाम? नो, योर फाइनल एग्जाम इज FMG, दैट इज 6 months away. GT is a simulator of FMG. How does it look like? GT gives you n number of opportunities to make mistakes. भाई जितनी गलतियां करनी है, जो सिली मिस्टेक्स करनी है, जो ब्लंडर करना है, करो, मेरे पे करो, मैं हूं यहाँ पर. मेरे पे अगर ब्लंडर नहीं करोगे तो नीट PG में FMG में कैसे पास होगे? अगर आप डर जाओगे GT से, नहीं दोगे, देन यू हैव टू मेक अ बिग अमाउंट ऑफ रिग्रेट आफ्टर योर फाइनल एग्जाम. तो GT से भागना नहीं है. कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम अपना सारा कोर्स पूरा कर लें फिर वी विल स्टार्ट GT. सारा कोर्स तो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ है भाई लोगों. जो टॉपर भी रहते हैं, दे हैव नॉट इवन कंप्लीटेड होल सिलेबस एवर. They just like competed more than other people, but no one has completed whole syllabus ever. तो how can you think कि आप पूरा करोगे फिर आप शुरू करोगे? Trust me, give one GT. If you are someone who has to start FMG journey yet, और आज आप तैयारी करने बैठ रहे हो, give one GT now. एक आज GT दो. क्या होगा? 0 मार्क्स आएंगे, नेगेटिव में तो आ नहीं सकते, 0 आएंगे. तो you know कि आज में तो एंड चांसेस आर लेस कि 0 आएंगे, एटलीस्ट 1-2 कुछ तो आएंगे. तो यू नो दिस इज वेयर आई स्टैंड. And now I see myself कि where do I have to go in 6 months. If you are giving next GT, आपके 10 मार्क्स आए, 20 आए, बिकॉज आपने फर्स्ट जो GT दिया आपने दिया बिना पढ़े.
आपने पढ़ाई शुरू करी, तो कुछ तो आपने कंसेप्ट ग्रास्प किया, कुछ आपने नया सीखा, अब आप वो पढ़ने के बाद दोगे जीटी, तो ऑफ कोर्स इट विल बी बेटर देन द लास्ट वन। फिर आपने और पढ़ा, आपने और सीखा, देन यू गिव अनदर जीटी, सो इट विल बी बेटर देन द लास्ट वन। तो आप देखोगे ना बीच में एक आधा ग्राफ गिरेगा, बट यू विल सी द ग्राफ फॉर लॉन्ग टर्म ग्राफ इज गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप। और अगर आप नहीं दोगे देन यू हैव टू रियली पे इट इन योर फाइनल एग्जाम और एफएमजी। तो ट्रस्ट मी, कभी भी you know you never have to get afraid of GT. Make GT your friend. There are so many benefits of GT. देखो, first of all it gives you the experience of exam, final exam. Second, it teaches you how to work under pressure. देखो, आपको 1 मिनट समथिंग मिलता है to solve a question. इस 1 मिनट में, because FMG pattern has changed quite a lot from the last few years, it is not only one liner, it is clinical and one liner both. So जो वन लाइनर है ओके, बट जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, ऑप्शन पढ़ने, समझने, एंड देन सोचना कि कौन सा सही ऑप्शन है। दिस रिक्वायर्स टाइम, दिस रिक्वायर्स वर्क अंडर प्रेशर। अरे कभी हो पाएगा जब आपने काफी जीटी दे रखे होंगे, आपको पता है कि ऐसे पढ़ना है, ये तरीका है, ये पूछ रखा है, ये हो सकता है ऐसा। आपने वो एग्जाम दिया ही नहीं है, देन हाउ डू यू थिंक यू विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। तो भागना नहीं है, तैयारी करनी है, जीटी से सीखना है बहुत ज्यादा। एंड एट द एंड ऑफ एवरी जीटी डू नॉट फोकस अपॉन योर रैंक। लोग क्या करते हैं, रैंक देखते हैं, भाई एफएमजी हमसे हमारी रैंक नहीं पूछ रहा, तुम कौन होते हो अपना आपसे अपनी रैंक पूछने वाले, बताओ। एफएमजी में 150 वाला भी पास है, 200 है वो भी पास है, जिसके 250 है वो भी पास है। If FMG is not giving you any rank, then why are you giving yourself any rank? Because FMG में अगर कोई आपने जीटी दिया, उसमें सपोज बच्चे 500 बैठे हैं, तो रैंक तो 500 के अंदर ही आएगी, अच्छी आएगी फिर तो रैंक। बट अगर बहुत सारे बच्चे बैठे तो चांसेस है कि रैंक आपके पीछे आ जाएगी। तो नेवर फोकस अपॉन द रैंक यू आर गेटिंग, ऑलवेज फोकस अपॉन द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस यू हैव डन। इफ दे वर 10 लास्ट टाइम, it should be more than 10 this time. If they were 50 last time, it should be more than 50 this time. So that's how you have to approach your preparation. Have a good mindset, have a good goal that what I really want to achieve in my life from this GT. ठीक है, रैंक कम आ गई, ये सब that is all materialistic. Your goal is to learn and to clear that FMG. That's all. ठीक है, किसी क्या रैंक आ रही है, क्या आ रहा है, हमें उसको कोर्स लेना नहीं है, हमें बस एक इंसान से मतलब है, वो है हम। That's all. Give GT before starting preparation, as I said. Focus on number of right questions and not on rank, as I said. Consider GT as your best test friend. Learn from GT solution. देखो, जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, एग्जामिनर wants to check or examine one aspect of your knowledge. That's why that question has been made. When will you come to know that what was the intent of that examiner? You will come to know when you will go through the solutions of those GTs. जब पता ही नहीं होगा आपको कि उसने क्यों पूछा, क्यों नहीं पूछा, then what will you do? See, I used to give GT and at the end of the day, I used to sit with all the notes and the GT. I gave almost 3 or 4 GTs during my FMG exam and I gave almost 15 GTs before my NEET PG. Like I used to give GT weekly during my NEET PG. So what I used to do, after giving NEET PG, I used to take break and after break, I used to go through solutions. How? सपोज क्वेश्चन आया ऑफ प्रीक्लेम्सिया, आई यूज्ड टू गो टू प्रीक्लेम्सिया टॉपिक एंड स्टडी दैट होल टॉपिक, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन से आपका एक टॉपिक रिवाइज हो चुका पूरा। योर वन टॉपिक हैज बीन रिवाइज्ड विद जस्ट वन क्वेश्चन, तो यू हैव रिवाइज्ड 300 टॉपिक्स विद 300 क्वेश्चंस। व्हाट अ मैजिक! तो इट विल टेक योर वन होल डे। इट्स नॉट लाइक आप जल्दी कर लोगे, इट टेक्स वन होल डे, बट दैट्स रियली फ्रूटफुल, दैट इज नॉट टाइम वेस्ट, दैट इज टाइम इन्वेस्टेड. So keep a track of how much marks you are getting, how much number of right questions you are getting, and then follow that, and you will see that gradually your marks are increasing. Yes. Now do's. Always believe in yourself and God. देखो, हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा करना हमारा काम नहीं है. गिव योर बेस्ट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ. लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच कर लेते हैं कि अगर मेरा फेल होगा तो क्या होगा, and not even with good result, with bad result. That is our human mindset. But देखो, अगर मैं सोचती रहूंगी ना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो I will waste my this time also. अगर मैं ना सोचकर कुछ पढ़ रही होती तो मेरा ये टाइम अच्छा बन गया होता, मैंने ये टाइम यूटिलाइज कर लिया होता. बट क्या होगा क्या होगा क्या होगा. देखो, हमारा सबका माइंड सेट है कि हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, एंड वी एट टाइम्स वी कांट कंट्रोल आवर माइंड, बट वी हैव टू थिंक दैट इन 6 महीने में ना अपने आप को सबसे डिटैच करके जस्ट थिंक
कि मुझे अपना बेस्ट देना है। उसके बाद अगर मैं फेल हो तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अगर आपने बेस्ट नहीं दिया एंड देन यू फेल्ड, आपको लगा काश मैंने कर लिया होता तो मैं आज कुछ और होता, आप बस 6 महीने ना अपने आप को दे दो, अपने पेरेंट्स के लिए दे दो, अपने आप के लिए कि मैं कुछ हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। बीइंग अ एफएमजी इज नॉट अ कर्स, इज अ सच अ गुड थिंग दैट यू हैव ऑल द पोटेंशियल, बिकॉज आप बाहर रहकर आए हैं, आपने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर रखा है। आपसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग कोई नहीं है। यू हैव सर्वाइव्ड अलोन इन दैट एलियन कंट्री फॉर 4-5 years. So you have to prove yourself, not to anyone, कि I am not lesser than anyone else. मैं जो हूँ खुद के लिए हूँ और मैं काफी हूँ। और अगर आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, देर इज नो लुकिंग बैक। आप बस उससे आगे ही जाएंगे, आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। जो रोकना चाहेगा भी ना, वो नहीं रोक पाएगा, बिकॉज आप इतना अच्छा माइंडसेट लेके बढ़ रहे होंगे। अपना आप पे भरोसा हमेशा रखना है। बैड डेज विल बी देयर व्हेन यू विल बी थिंकिंग कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, टॉपिक नहीं याद हो रहा। बैड डेज आर ऑलवेज देयर, बट यू विल नेवर क्विट। यू विल टेक रेस्ट एंड द नेक्स्ट डे यू विल गेट अप विद अ गुड माइंडसेट कि कल नहीं हो तो आज होगा, कभी ना कभी तो होगा ना। मैं हार नहीं मानने वाला। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर तो कभी नहीं होगा, बट अगर मैं करूंगा तो क्या पता आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो होगा ही। तो ऑलवेज have this mindset in yourself and then study. Very important, always be thankful. जितना भी मिला है, जो भी मिला है, उम्मीद से बहुत ज्यादा मिला है। If you see around yourself, दुनिया में ना बहुत दुख है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास फिर भी भगवान ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया है। तो always be thankful whenever you wake up. Before going to sleep, always thank God कि आपने एक और दिन दिखाया, एंड देन अच्छे माइंड से पढ़ के सोएंगे, एंड देन उठेंगे, एंड देन थैंक करेंगे, एंड देन फिर पढ़ेंगे। एंड इंपॉर्टेंटली रिवाइज करना रात को नहीं भूलेंगे। नेवर फॉरगेट टू एंजॉय दैट टाइम फॉर योर सेल्फ विद अ कॉफी एंड अ चाय। सेकेंड, व्हाट नॉट टू डू, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ विद एनी टाइटल। यू आर नॉट लेसर देन एनीवन। अगर मैंने सोचा होता कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि आई नेवर यूज टू थिंक दैट। आई ऑल्सो हैड माई पार्ट ऑफ बैड डेज, बट ठीक है, आई हैव लर्न फ्रॉम इट कि दिस इज हाउ लाइफ इज। लाइफ इज नॉट अ विश ग्रांटिंग फैक्ट्री कि जो आप चाहो मिल जाएगा। आपको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, तब मिलेगा आपको। आपको कर्म करना पड़ेगा, फिर चिंता करना आपका काम नहीं है, तब कर्म करो बस। डू नॉट वेस्ट टाइम। सी, ह्यूमन माइंडसेट इज रील्स देख ली, ब्रेक ले ली, या चाय पीने बैठ गए, बट ये 6 महीने ना यू हैव टू कट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। 6 महीने की बात है, ये तो है नहीं कि आपको बोल रही हूँ कि जस्ट इंस्टा से अकाउंट डिलीट ही कर दो। 6 महीने है, या तो बस 2 ऑप्शन है, या तो इंस्टा पे बैठ के किसी और की लाइफ कैसे चल रही है वो देख लो, हाउ ही इज लिविंग, हाउ ही इज एंजॉइंग, हाउ शी इज लर्निंग, हाउ शी इज पार्टिंग, या फिर कीप ऑल दैट असाइड, क्लोज योर ईयर्स एंड देन फोकस ऑन योर सेल्फ। उनका don't compare your 0 to someone's 1000. They might also had their bad days, but that's not what they post. They always post good things. So there's always a FOMO, मैं तो पढ़ नहीं रहा, मैं तो पैसे भी नहीं कमा रहा, मैं तो बड़ा भी हो चुका हूँ, I'm a burden. Everyone has their own journey. आप इस लाइफ में भेजे गए हो एक मकसद से, एक जर्नी से। Don't compare an apple to a mango. Mango has its own journey, apple has its own journey. समझ रहे हो मेरी बात? तो इफ यू आर समवन हु इज कंपेयरिंग योर सेल्फ, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। दैट्स द वर्स्ट थिंग। उस इंसान की जर्नी अलग है, उसके अपने बैड डेज हैं, आपकी जर्नी अलग है, आपके अपने बैड डेज हैं। डोंट कंपेयर, नेवर एवर कंपेयर, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर यू विल स्टार्ट थिंकिंग सो मच ऑफ वॉट ही और शी इज डूइंग, देन यू विल लीव द पेस ऑफ योर सेल्फ एंड देन यू विल पक्का लूज। ठीक है? Never go to bed without revision. Always revise and then go to bed, and don't run away from GTs. And important point, look out to someone to whom you can look upon. It can be from a medical background. It might not be from a medical background. They might be your parents. You have seen your parents sacrificing so much for yourself. आप देखो कि जब आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर हार नहीं मानी, तो आप कौन होते हो हार मानने वाले? तो हार मानना ऑप्शन में ही नहीं है। बुरे दिन आएंगे, यू विल टेक रेस्ट, बट यू विल नॉट क्विट और गिव अप। इफ यू हैव अ फ्रेंड हु हैज बीन थ्रू अ लॉट एंड स्टिल डूइंग गुड, आप उससे इंस्पिरेशन लो। इफ ही कैन डू इट, सो कैन आई। उसने कर लिया तो मैं भी करके ही दिखाऊंगा। डोंट कंपेयर, टेक एडमिरेशन एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन। दैट कैन बी अ मोटिवेटर
or some senior or some friend or some colleague or your parents or some teacher. Just have one person जिसके पास जाकर आपको अच्छा फील हो, एंड देन यू कैन की लाइक नहीं, मैं इतना खराब भी जिंदगी में नहीं हूँ. आई एम हेयर टू प्रूव समथिंग टू माई सेल्फ, नॉट टू एनी वन एल्स, जस्ट टू माई सेल्फ एंड टू गॉड. इट्स नेवर बिटवीन यू एंड अदर पीपल, इट्स ऑलवेज बिटवीन यू एंड गॉड. ओके, बी योर बिगेस्ट मोटिवेटर. देखो दुनिया में बुराई करने, ताना मारने, टांग खींचने, पत्थर डालने हर कोई आएगा, बट ताने बजाने कोई भी नहीं आएगा. कोई भी नहीं आएगा. आपके पेरेंट्स आएंगे, आपके घर वाले आएंगे, और कोई भी नहीं आएगा. एंड एट टाइम्स वो भी नहीं आ पाएंगे बिकॉज दे आर सो बिजी. आपको अपने लिए ही खड़े होना पड़ेगा. यू हैव टू बी योर बिगेस्ट मोटिवेटर. अगर यू हैव गिवन सम GT एंड यू हैव स्कोर्ड वेल, you should thank yourself कि you did not give up. You have come this far and you will go much more far. Okay. Never say or think bad about yourself. See, our brain can read and hear what we say. So if we say bad things about ourselves, it really affects in our nature. So never ever say कि मैं गंदा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं average हूँ. Darling, you are not an average student. You are more than that. That's why you are here to give this exam. अगर आप एवरेज होते तो आप एग्जाम नहीं दे रहे होते. थिंक अबाउट इट. आप यू आर MBBS. इट्स योर जर्नी ओनली एंड नो वन एल्सेज. इट्स इफ समवन एल्स कुड डू इट देन यू कैन डू इट टू. हैव दिस माइंडसेट. तैयारी करने बैठिए. इट वॉज, इट इज, इट विल ऑलवेज बी यू वर्सेज यू एंड नो वन एल्स. एंड देयर इज ओनली वन पर्सन यू हैव टू प्रूव इज टू योर सेल्फ. ठीक है. Thank you for this video. If you have any queries regarding academic purpose or some help you want, I will be more than helpful to help you all during your journey. Even if I could make one life better, this video will be worthwhile. Thank you.